Now, next question is, first of all, welcome to Munjal's physics classes, and this is your second lecture for kinematics. Now, very first term I am using what is speed and velocity. We have to distinguish between these two quantities, speed and velocity. Speed is rate of change of distance. Rate of change of distance is called speed. V is equal to dx by dt. यहाँ पे जो dx by dt है, this is new term for you. This is the rate of change of distance with respect to x. ये जो d by dt of x है, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t. इसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर बनेगा जहां मैं आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन समझाऊंगा. अभी आपने क्या याद रखना है, v is equal to dx by dt and v is equal to change in distance upon time taken. Rate of change of distance का मतलब change in distance upon time taken, that is called speed. Now there are different type of speeds. First is called uniform speed. यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक जैसा. द स्पीड ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distance in equal time interval. If a body cover equal distance in equal time intervals and however it may be small, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कोई पर्सन है, ये ए से चला बी पे and it will take 10 seconds and distance is 10 meter. वही पर्सन बी टू गया सी, ये है सी at 20 मीटर फ्रॉम ए एंड टाइम टेकन इज 20 सेकेंड. तो बी से सी जाने में भी इसको लगे 10 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 10 मीटर. 20 to 30 सेकेंड अगेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 10 मीटर. दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर. तो मतलब ये हुआ कि इन एवरी 10 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन इज 10 मीटर. इन एवरी 5 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड शुड बी 5 मीटर. In every 1 second, distance traveled should be 1 meter. Then such type of speed is called uniform speed. A body is moving with uniform speed if it covers equal distances in equal time intervals and however it may be small. और यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. एंड स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से. C is the symbol for speed of light and the value of speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. 3 into 10 power 8 meter per second का मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो this is the example of uniform speed. Next is variable speed, or this is called non-uniform speed. Next is variable speed and this is called non-uniform speed. A body is moving with variable speed if it covers equal distances in unequal time interval. If it covers equal distances in unequal time intervals, or you can say unequal distances in equal time intervals. सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करें या
same distance different time or different distance in same time. So such type of speed is called non-uniform speed, and this is called variable speed. Next is average speed. Next point is average speed. Average speed. अब एक्चुअली क्या होता है, जितने भी आपने एग्जांपल डेली लाइफ में देखे हैं वो सारे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के हैं। भाई आप घर से चले मार्केट पहुंचे, आप बाइक पे जाओ या कार पे जाओ या साइकिल पे जाओ, वो स्पीड जो है वो वेरिएबल स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। जब क्लियर रोड होगा तो यू विल ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस इन स्मॉल टाइम, और रश ज्यादा होगा यू विल ट्रेवल स्मॉल डिस्टेंस इज लार्ज टाइम। तो जो स्पीड है आपकी वो है नॉन यूनिफॉर्म, वो स्पीड वेरिएबल स्पीड है। तो ऐसे में मुझे ये देखना हो कि कितनी स्पीड से आप घर से मार्केट गए या मार्केट से घर गए, तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला देख लो, इसमें हमें न्यूमेरिकल करने हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड upon total time taken. This is the example of, this is the definition of average speed. तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बट एवरेज स्पीड को डिफाइन कैसे करना है? फॉर एग्जांपल आप चले ए से बी एंड यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। Suppose you are moving from A to B and you will reach at B after time t. Now there is another body that is suppose bus, and bus is moving with variable speed. Bus is moving with variable speed and it will reach B at after same time t. यानी कि आप जा रहे कांस्टेंट स्पीड से t टाइम में B पे पहुंचे, बस जा रही है वेरिएबल स्पीड से टी टाइम में ये भी पे पहुंची। तो ये जो 40 किलोमीटर पर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ बस। तो अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द कांस्टेंट स्पीड विद विच इट विल कवर सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम एज इट इज कवर्ड बाई बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो मतलब ये हुआ कि आप जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर से और बस जा रही है वेरिएबल स्पीड से। आप और बस दोनों पहुंची बी पॉइंट पे आफ्टर सेम टाइम टी। तो जो आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ बस। ये इसका मीनिंग है। और डेफिनेशन में क्या लिखोगे? एवरेज स्पीड इज द कांस्टेंट स्पीड विद विच ए बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम as it is covered by body moving with variable speed। तो डेफिनेशंस तो आप डायरेक्ट याद कर रख सकते हो, बट जो हमें फॉर्मूला चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे शुरू में लिखा स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। जो हमने स्टार्टिंग में डी एक्स बाई डी टी था उसको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब है स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, डेल्टा टी है स्मॉल टाइम टेकन। तो ये है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। सपोज आप अपनी कार में जा रहे हो ड्यूरिंग मोशन, जिस टाइम आपने देखा स्पीडोमीटर को उस टाइम जो स्पीड थी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग मोशन
दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपने ब्रेक्स लगाए तो स्पीड इज गोइंग ऑन चेंजिंग, बट जिस टाइम आपने स्पीडोमीटर को देखा उस टाइम स्पीड थी 28 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो 28 किलोमीटर पर आवर है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंट होता है वेरी स्मॉल टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। वैसे हम लिखते हैं, नहीं लिखोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब जो वो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा होता है इंस्टेंट के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्चुअली हम इस टाइप से लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये समझ में आएगा आपको 2 दिन के बाद। तो फिलहाल मैंने ये बताया, द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल विल मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है वो ये है कि स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल विल मेजर विच स्पीड, देन आंसर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट विल मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसी पे सेम डेफिनेशन आ जाएंगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement is called velocity, and velocity is again delta x by delta t. Delta x change in displacement और delta t is time taken। तो अभी जो स्पीड की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है उसमें डिस्टेंस की जगह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो स्पीड को चेंज कर देंगे हम वेलोसिटी से। तो मैं फटाफट रिकैप कर रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, a body is moving with uniform velocity if it covers equal displacements in equal time interval। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बनेगा यहां पे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल टाइम इंटरवल और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। A body is moving with variable velocity if it covers equal displacements in unequal time intervals और unequal displacements in equal time intervals। तो जैसे वहां डिस्टेंस था यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और लास्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट is called instantaneous velocity. Main difference is that speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity, क्योंकि velocity के पास डायरेक्शन है, distance scalar quantity, displacement vector quantity, displacement has direction from initial to final, same speed is scalar quantity and velocity is vector quantity। तो ये तो definitions है और मोस्ट प्रोबेबली 11th क्लास में डेफिनेशंस कोई नहीं पूछता, सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है, एंड दैट इज स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल विल मेजर विच स्पीड। तो आंसर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेकंड क्वेश्चन बनता है जो अभी हम लोग पूरा 4-5 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वो इसी फॉर्मूले में चलेगा, एवरेज स्पीड total displacement upon total time taken and average velocity total displacement upon total time taken।
स्पीड में डिस्टेंस आ जाएगा और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. तो वी विल, एंड ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, suppose the body is moving in straight line. If the body is moving in straight line, then distance and displacement are same. Distance and displacement are same. So speed and velocity will be same. जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो स्पीड हो जाएगी. तो अगर मैं डायरेक्शन हटा दूं तो स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्पीड. तो इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन. ये जो चैप्टर है इसका असली नाम है वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. इसलिए कई बार मैं स्पीड वेलोसिटी बोल जाऊंगा तो इट मीन द मोशन विल बी इन स्ट्रेट लाइन. दैट इज व्हाई स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी. क्वेश्चन इज, a car is moving with speed 40 km per hour for 2 hours. Then it will cover 100 km distance with speed 25 km per hour. Find average speed. जब भी कोई न्यूमेरिकल करना हो, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल आने हैं, तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट कैसे करना है वो देखो और कोशिश करो डायग्राम में कन्वर्ट करना. ए कार इज मूविंग विद स्पीड, सपोज कार गई ए टू बी और स्पीड है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग गया इसको 2 आवर. देन इट कवर्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस. फिर ये जो डिस्टेंस है इसका नाम ले लिया x2, 100 किलोमीटर और स्पीड है इसकी 25 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड. मुझे एवरेज स्पीड निकालना है. देखो जब भी एवरेज स्पीड आ जाए तो हमारा पास एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीट जर्नी अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया. अब ए से बी का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया x1. बी से सी का डिस्टेंस मान लिया मैंने x2, दे रखा है 100 किलोमीटर x2. टाइम ए से बी का t1 मान लिया हमने 2 आवर दे रखा है. बी से सी का टाइम नहीं मालूम तो टाइम आ जाएगा t2. मतलब ये हुआ कि x1, x2, t1, t2 अगर मुझे पता लग जाए तो मैं आंसर निकाल सकता हूं. अब फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा v इंटू टाइम और टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन v. ये फॉर्मूला को याद रखना चाहिए. v है d बाई टी, तो डिस्टेंस होगा v इंटू टी और टाइम होगा d अपॉन v. अब यहां देखो x1 मुझे नहीं मालूम, x1 निकालना है. तो x1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v1 t1, बोलो स्पीड इंटू टाइम दैट इज का डिस्टेंस, v1 t1. 40 इंटू 2 ये बन गया 80 किलोमीटर. अब x2 पता है, x2 दे रखा है कितना है 100 किलोमीटर. अब t1 क्या दे रखा है 2 आवर, t1 मालूम है 2 आवर हो गया. अब t2 नहीं मालूम, t2 निकालना है. t2 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x2 अपॉन v2, 100 बाई 25 यानी कि 4 आवर.
तो ये क्वेश्चन भले ही बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल टू डिफिकल्टी जाएंगे हम लोग, तो इसे बहुत जल्दी नहीं करनी कि भाई ये आता है तो ठीक है, अगले वाले और डिफिकल्ट होते जाएंगे यहाँ। तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 यहां पुट कर दो। X1 है मेरे पास 80, X2 है 100, T1 है 2 और T2 है 4। क्या बन गया ये 180/6, 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका एवरेज स्पीड निकालने का। क्लियर? तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। अभी आज सारा टाइम हमने यही करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो अभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी यहां से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं वन बाय वन करके, और सभी में बेसिक रूल क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ए कार इज मूविंग with speed v1 for first half time and with v2 for second half time, find average speed। अब जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं ये अपने आप में एक रिजल्ट निकल के आएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। यहां क्या लिखा हुआ है, कार इज मूविंग विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड देन विद v2 फॉर सेकेंड हाफ टाइम। फर्स्ट हाफ टाइम में इसकी स्पीड v1 है और सेकेंड हाफ टाइम में इसकी स्पीड v2 है। एवरेज स्पीड निकालनी है। यहां पे टाइम इंटरवल सेम दे रखा है, देखो कैसे। अब टोटल टाइम को आप t मान लो, तो हाफ टाइम होगा t/2 t/2। टोटल टाइम को 2t ले लो तो t और t आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। सपोज ये a, ये b, ये c। ये टाइम t1, वैल्यू है इसकी t हाफ। ये टाइम t2, इसकी वैल्यू है t हाफ। यहां स्पीड है इसकी v1 और यहां स्पीड है इसकी v2। a से b का डिस्टेंस मान लिया मैंने x1 और b से c का डिस्टेंस मान लिया मैंने x2। मुझे तो टाइम स्पीड रखी है बस, तो मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, टोटल टाइम t1 प्लस t2, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन t। देखो यहां दिक्कत क्या है, x1 नहीं पता, x2 नहीं पता। टोटल टाइम मैंने t मान लिया, वो भी मैंने मान रखा है। मुझे v1 v2 पता है बस। अब निकालो x1। x1 इज इक्वल टू v1 t1, ये फॉर्मूला होता है। स्पीड इंटू टाइम, दैट इज कॉल्ड x1। v1 v1 और टाइम क्या है t/2, तो v1 t/2। x2 क्या हो जाएगा v2 t2, और t2 भी क्या है हाफ टाइम t/2। तो x1 प्लस x2, v1 t/2, v2 t/2, v1 प्लस v2 t/2। मैं यहां ना लिखे मैंने डायरेक्ट नीचे ही कर दिया। अब निकालना है एवरेज स्पीड। x1 प्लस x2, v1 प्लस v2 t/2 अपॉन t। तो v एवरेज क्या बन गया, v1 प्लस v2/2। ये बन गया आपका एक नया फॉर्मूला, v1 प्लस v2/2, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और ये फॉर्मूला कब काम करेगा, व्हेन टाइम इंटरवल आर सेम।
अगर टाइम इंटरवल सेम है तो आप अर्थमेटिक मीन ले लो। तो अगर टाइम इंटरवल सेम है, जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये लो 1 2 3 4, यहां स्पीड है सपोज v1 10 मीटर पर सेकेंड, यहां स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां स्पीड है अगेन 30 मीटर पर सेकेंड, और यहां स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये टाइम t है, ये भी टाइम t, ये भी टाइम t, ये भी टाइम t, सारे टाइम सेम है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ये टाइम 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड। ये आ जाए ये टाइम t/4, 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 t/4। टाइम इंटरवल कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए वो सेम। अगर वो टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 बाई 4, 100 बाई 4, 25 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल आपका ऑब्जेक्टिव टाइम में तो चल जाएगा, स्कूल में नहीं चलेगा। स्कूल में तो आधा नंबर मिलेगा आपको, स्कूल में तो आपको इसी टाइप से सोल्व करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, और फॉर्मूला क्या है? टाइम इंटरवल अगर सेम है तो एवरेज स्पीड हो जाएगी अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। जितने स्पीड हमें दे रखी होंगी उनका जस्ट एवरेज कर दो। तो दो चीजें आएंगी। अभी तो आया टाइम इंटरवल सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा डिस्टेंस सेम। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा टिपिकल है, उस पर हम ज्यादा वर्क करेंगे। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत है नहीं किसी को। तो इसी के अभी 4-5 न्यूमेरिकल और करेंगे तो सारी क्लैरिटी आ जाएगी किस टाइप से हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कंप्लीट करना है। सेम क्वेश्चन देखो, ए कार इज मूविंग with speed v1 for first half distance and with v2 for second half distance, find average speed। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट निकलेगा यहां से। कहते हैं कार इज मूविंग विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। ये लो, ये ए, ये बी, ये सी, x1 x/2 और x2 x/2। अगर मैं 2x ले लूं तो ये x, ये x, ये भी कर सकता हूं मैं, लेकिन हमारी हैबिट क्या है x लेने की। तो फर्स्ट हाफ x/2, सेकेंड हाफ x/2। यहां स्पीड v1, यहां स्पीड v2। टाइम मुझे पता नहीं है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। टाइम t1 और यहां टाइम क्या है t2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। टोटल डिस्टेंस x और टाइम है t1 प्लस t2। अब x t1 t2 में निकाल के और ऐड करके यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो t1 कैसे निकालोगे? t1 इज इक्वल टू x1 बाई v1 x बाई 2v1, t2 x2 बाई v2 x बाई 2v2, t1 प्लस t2 x बाई 2v1 x बाई 2v2, x बाई 2 कॉमन ले लो, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको पुट कर दो यहां पे।
देखो वी एवरेज एक्स बाई टू 1/v1 + 1/v2। एक्स से कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2/1/v1 + 1/v2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2/v एवरेज 1/v1 + 1/v2, दिस इज द रिजल्ट। और इसे बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन। 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 + 1/v2, दिस इज द रिजल्ट। और मैं इसका एलसीएम ले लूं तो v1 v2 v2 + v1, तो v एवरेज बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद करने हैं। तो अगर टाइम इंटरवल सेम है तो अर्थमेटिक मीन हो गया, और अगर डिस्टेंस सेम है तो हार्मोनिक मीन हो गया। इसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन। 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 + 1/v2। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद करने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन और कराऊंगा तो और ज्यादा कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। तो फिलहाल अभी मैं इस पे थोड़ा कंसिडर कर रहा हूं दोबारा। तो 2/v एवरेज 1/v1 + 1/v2 और v एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। अगर बाई चांस 3 टाइम इंटरवल 3 सेम डिस्टेंस आ जाए इस टाइप से, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, x/3 x/3 x/3, स्पीड v1 स्पीड v2 स्पीड v3। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला बनेगा 3/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया इफ 3 डिस्टेंस इंटरवल्स आर सेम। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर टाइम सेम है तो आप सीधा एवरेज कर दो, अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर अर्थमेटिक मीन नहीं होगा, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। 3/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। तो इसी पे मैं एक न्यूमेरिकल और कर देता हूं, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट लगा के भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस काफी आप कर सकते हो। सेम कुछ क्वेश्चन नोट्स में भी दे रखे होंगे। क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में से जो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा बनता है वो यही है। वो क्या है? ए कार इज मूविंग फ्रॉम P to Q with speed 40 km/h. Then Q to P with speed 60 km/h. Car is moving from P to Q with speed 40 km/h. Then Q to P with speed 60 km/h. Find average speed and average velocity. ये P और ये Q, स्पीड 40 km/h, स्पीड 60 km/h। सपोज P से Q का डिस्टेंस है x, x जाना और x आना, तो दोनों डिस्टेंस सेम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? V एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, 240 × 60, 40 + 60, 4800 अपॉन 100, 48 km/h। तो एवरेज स्पीड आ गई 48 km/h।
सीधा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, ये तो था जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। हम करेंगे जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी टाइप से। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2, p से q x, q से p x, x जाना x आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x, और टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। अब निकालो t1, x1 बाई v1, p से q है x, वेलोसिटी है 40, t2 x2 अपॉन v2, ये फॉर्मूला हो गया, x2 x, v2 60, टोटल टाइम t1 प्लस t2 x बाई 40 अपॉन x बाई 60। एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 3x प्लस 2x, 5x अपॉन 120, x बाई 24, यहां पुट कर दो। एवरेज स्पीड 2x, x बाई 24, तो ये बन गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू बन गई 48 किलोमीटर पर आवर। तो स्कूल में आ जाए तो आपने इस टाइप से करना है, और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बता दिया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लेट अस चेक वन मोर क्वेश्चन। उसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जब एक्स एक्स सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो बनेगा 3 अपॉन वी एवरेज 1 बाई v1, 1 बाई v2, 1 बाई v3। now put the values 1 by 10, 1 by 20, 1 by 30। एलसीएम आ जाएगा 60, 6 प्लस 3 प्लस 2 11 बाई 60। तो वी एवरेज आ गया 3 इंटू 60 बाई 11, 180 बाई 11 किलोमीटर पर आवर। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर वेलोसिटी दे रखी होंगी तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एवरेज डिस्टेंस एंड एवरेज speed and average velocity, and this is all about average speed and average velocity. If you are facing any problem, then you can contact me, you can call me. God bless you all. तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। आप कोई कुछ पूछना चाहता है तो बोलो जल्दी से। अब एक एक करके फेस दिखाओ। यशिका, यशिका, यशिका सुन रही हो? इसमें ठीक नहीं है, लैपटॉप पे नहीं चलता। अच्छा, अभी आओ। जूम पे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी, बस ये है।
इसमें कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको सेम लेक्चर की, जूम पे रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। रोनित, भानु, कैमरा ऑन करो अपना, जल्दी से दिखाओ, एक बार फेस दिखाओ अपने, कैमरा ऑन करो बेटा। रिद्धि, सक्षम, अक्षत, सक्षम समझ में आ गया सब कुछ? अक्षत, रिद्धि, बोलो सही। चलो ठीक है, कल मिलेंगे फिर सेम टाइम। ये सेम क्वेश्चन नोट्स में कर रखे हैं, अब इन्हें कर लेना, और कल मिलते हैं फिर। सेम क्वेश्चन नोट्स जिनके पास है, या मैं पीडीएफ शेयर की थी वहां से सेम क्वेश्चन ट्राई करना, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो वी विल डिस्कस। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।